and we will begin with this session. ठीक है? So first part which I'll be doing is, as you can see on the screen, students, this PDF again today I'll be uploading this PDF in your group. Okay, ये इस PDF में, as you can see on the cover page also, you have total 3 chapters in this PDF. ठीक है? इस PDF में 3 chapters हैं total. Which are those 3 chapters? You have biomolecules. इनमें से तो आपका तो एक ही chapter हुआ है. हमारा सिर्फ ये वाला chapter है students, cell unit of life. ठीक है? Only this chapter is over from my side. What is remaining still? We are still to be starting. We have yet not started biomolecules. We have not started photosynthesis. तो दोनों chapter अपने pending हैं. So therefore, if you start with this PDF, you have to directly go to page number 20. वहां से आपको start करना है. ठीक है students? Page number 20 से you have to begin. Cilia flagella is remaining. That part we will cover. ये मॉड्यूल है? Yes, yes. नहीं, ये मॉड्यूल नहीं है. ये क्या है? ये स्टूडेंट्स का ही लास्ट टाइम का नोट्स है. एक स्टूडेंट ने नोट्स बनाया था ये. सो मैंने इसको इस तरह से PDF बना के आप लोगों के लिए रखा है, सो दैट यू कैन रेफर दिस. एंड सी स्टूडेंट्स, आपको यहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बट दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाउ यू शुड गो अहेड विद द नोट्स. आपको नोट्स बनाना कैसे है बायो में, दिस इज द बेस्ट वे. इफ यू गो थ्रू दिस नोट्स, यू विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली कैसे हमको एक्चुअल नोट्स बनाने हैं. वेरी नाइसली शी हैज प्रिपेयर्ड नोट्स. जैसे से आपके चैप्टर्स होते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा. ठीक है? ये देखो, दिस इज वेयर सेल यूनिट ऑफ लाइफ विल स्टार्ट. दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर, सेल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके? एंड वेरी नाइसली शी हैज एक्सप्लेन, एकदम शॉर्ट में सब कुछ कवर किया है फ्लो चार्ट पैटर्न में. मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, फ्लो चार्ट पैटर्न आपको बनाना है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इन द फ्लो चार्ट पैटर्न. ओके, ये चेक करो. लाइफ वेरी नाइसली. सेल थियरी किस किसने कंट्रीब्यूट किया, व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस, सेल थियरी का और क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, ये सारी बातें. नाउ आई डायरेक्टली गो टू दिस पार्ट स्टूडेंट. सीलिया फ्लैजेला वाले पार्ट में जाता हूं डायरेक्टली, जो अपना अभी पेंडिंग है. ठीक है? सीलिया एंड फ्लैजेला. सर शायद से आपने ये भेजा था. हाँ, मैंने भेजा था ऑलरेडी. यस यस, डेफिनेटली मैंने भेजा था, बट वापस से भेज दूंगा बिकॉज न्यू स्टूडेंट्स आ गए हैं. ये देखो, सीलिया एंड फ्लैजेला स्टूडेंट्स. So this part is remaining. Eukaryotic cell में this part was remaining. So let us do this part first, and then I'll take you into the prokaryotic cell. Okay, students? ये छोटा सा part pending है. If you go through the diagram, yes, Sakshi, you can definitely send those questions to me. Okay, Sakshi? ठीक है? Lecture के बाद मुझे भेजो, and you can send it on the group also. If in case I feel that this is out of NCERT, I'll comment accordingly, or else I'll let you know the answer. ओके साक्षी? ग्रुप पे ही, कंपलसरी ग्रुप पे भेजने का, ताकि बाकी लोग भी उसके ऊपर थॉट दे सके. Sir, it is from another NCERT MCQ book, so I have started solving that, but there were few questions which I didn't got. Okay, which book you are solving? It is NCERT of 2018. It is chapter wise MCQs. Okay, no problem. You can send those questions in the group itself after the lecture. ठीक है साक्षी? Okay, चलो students. So cilia and flagella, what exactly cilia and flagella is? Cilia and flagella exactly होते क्या हैं? That let us try to understand. Okay, make sure all of you have your camera on. ठीक है? कैमरा सबका ऑन होना चाहिए. चेक उसने क्या लिखा है. पॉइंट वाइज she has written, first of all singular plural को डिफाइन कर दिया. So can I see cilium over here students? ये वर्ड दिख रहा है आपको? Singular is cilium. Singular of flagella is flagellum. पहले ये पार्ट हमने कवर कर लिया. ठीक है? cilia, flagella plural term, cilium, flagellum singular term. Then let us go ahead. क्या होते हैं ये? What are these? They are outgrowths. मतलब क्या? Suppose this is plasma membrane students. If this is plasma membrane, these structures are something which are coming out of plasma membrane. They are outgrowth of plasma membrane. समझ में आ रहा है? These are outgrowth of plasma membrane coming through plasma membrane. Plasma membrane के extensions we can say. Okay, next point. आगे चलते हैं. So cilia causes the movement of surrounding things and flagella causes your own movement. Simple सी बात है. ये देखो. Try to understand this line students. What is the function of cilia? So cilia क्या करेगा मेरे लिए? Cilia will move things for me. Suppose this is a cell. Okay, दिख रहा है आपको? ब्लैक कलर का सेल दिख रहा है स्टूडेंट सबको? सेंटर में मैंने बनाया. If yes sir. cilia,
if this cell has cilia, ये देखो अगर cilia ऐसा है, so these cilia will help to move materials. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर ब्रोंकाई स्टूडेंट्स, आपका जो एयरवे है ना, एयरवे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में देयर आर सेल्स which are ciliated. ये देखो, these are the cells of bronchi suppose. ठीक है, these are the cells of bronchi. ये सेल्स बना दिया, ब्रोंकाई बना दिया और उसके अंदर सेल्स हैं. So these cells are having cilia, hair-like projections. ये देखो, they are having cilia. So cilia से क्या करेंगे ये लोग? If there is any foreign particle or mucus अगर जमा हो गया तो cilia will swipe the mucus, swipe कर देगा mucus को, move कर देगा mucus को towards outside. Are you understanding? So cilia helps to move things. cilia उस particular cell को move नहीं करेगा, उसके सामने जो चीज है उसको move करेगा. And what about flagella? Flagella is going to move you. It is going to move the cell. समझा? Simple example लो. Sperm, in case of human beings, human male sperms. So sperms have flagella. Sperms have flagella. With the help of flagella, sperm will move upwards. It moves upwards through the uterus into the fallopian tube of female reproductive system. Are you understanding? So flagella will move that cell, and cilia, if present on that cell, will move the materials which are present around the cell. Cilia will not move the cell itself. Cilia will move the materials which are around the cell, and flagella will move the cell itself. Am I clear on this, students? बताओ मुझे, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? Clear? Yes, है? sir. What are bronchi? Sir, what is the? Again, I'll repeat. Wait. Again, I'll repeat. अच्छा, what are bronchi? Bronchi जो मैंने बात किया, bronchus और bronchi, these are present in your respiratory system. हमने पढ़ा ना, nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. These are the organs of your respiratory system, students. Components of your respiratory system. Yes, in lungs. Correct. याद आया? Very good. शाबाश. ठीक है. So again, I'll repeat. क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम? cilia as well as flagella, they are the extensions of plasma membrane. They are the extensions of plasma membrane. And what is their role? If you ask me what is the role of cilia, what is the role of cilia, I will say it will help to move the materials. cilia क्या करेगा? materials को move करने में help करेगा. ओके. एंड अगर किसी सेल के पास फ्लैजेला है तो फ्लैजेला क्या करेगा? खुद सेल को मूव करवाएगा. ओके, खुद सेल को मूव करवाएगा. सिंपल एग्जांपल है तो, और लॉजिकल एग्जांपल लूं तो अपने हैंड्स एंड लेग्स. ठीक है, हालांकि अपन तो वैरायटी यूज करते हैं उसमें, कभी कभी अपन हाथ से भी चल लेते हैं, कभी कभी आप पैर से भी चीजें मूव कर देते हो. किसी ने बोला कि ये कुर्सी प्लीज मुझे दे दे, मम्मी ने बोला वो कुर्सी लाके दे दे, आपने पैर से कुर्सी मार दी, कुर्सी चली गई वहां पे. तो आपने लेग्स यूज कर लिया टू मूव थिंग्स. सो व्हेन आई से फ्लैजेला, इट इज टू मूव दैट पर्टिकुलर सेल. इफ आई से cilia, इट इज टू मूव थिंग्स व्हिच आर सराउंडिंग, व्हिच आर अराउंड दैट सेल. ओके, सो cilia का परफेक्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स. cilia आपके बॉडी में बहुत जगह प्रेजेंट है. ब्रोंकाई में प्रेजेंट है. पता है जब आप कफिंग करते हो, वेट कफ, जब तो खांसी आ रही है, बहुत जन बोलते हैं ना कि कफ निकल रहा है, कफ निकल रहा है. सुना ये? दैट इज रॉन्ग टर्म नाउ. कफ नहीं निकलता. कफ इज दिस एक्ट, दिस इज कफिंग. जो स्पूटम बाहर आता है उसको बोलते हैं स्पूटम. SPUTUM, स्पूटम. तो आप बोलने का स्पूटम निकल रहा है, आपको कफ नहीं निकल रहा है. जो आप खांसी कर रहे हो उसको ही कफ बोलते हैं. समझ में आया? जब अपन भाग रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? रनिंग. जब आप खांसी कर रहे हो तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू आर कफिंग. यू आर कफिंग. दैट इज कफ रिफ्लेक्स. कफ रिफ्लेक्स. जो बाहर आ रहा है लिक्विड, दैट इज नॉट कफ. लेमैन उसको बोलता है कफ निकल रहा है. आप बोलोगे स्पूटम निकल रहा है.
म्यूकस निकल रहा है, दिस इज मोर इनटू साइंस ना, म्यूकस निकल रहा है। हिंदी में बोलना है तो आप बोलोगे बलगम निकल रहा है, बलगम, बलगम, ठीक है। सो आप अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो वहां पे बड़े बड़े चार्ट्स लगे होते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के पेशेंट्स की शिकायतें क्या क्या होती हैं। सो टीबी के पेशेंट्स की शिकायतें लिखी होंगी, बलगम निकलना, बलगम होना, खांसी ज्यादा आना, समझ रहा है, समझ रहा है। सो नाउ ट्राई टू इमेजिन स्टूडेंट्स, ट्राई टू इमेजिन, ये देखो मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, अभी ध्यान देना, ओके। सपोज दिस इज माय ब्रोंकाई, ये देखो नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, फिर आता है ब्रोंकाई। सो जो ब्रोंकाई होते हैं, अगर मैं ब्रोंकाई को एक पाइप की तरह बना दूं तो ये देखो, सपोज दिस इज ब्रोंकाई, पाइप की तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। ब्रोंकाई के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स को अब बना रहा हूं मैं, ओके, आई एम ड्राइंग द सेल्स नाउ। चेक करो, दीज आर द सेल्स इनसाइड माय ब्रोंकाई, these are the cells inside my bronchi, और this is bronchus by the way, this is singular, एक ही मैंने bronchus बनाया है। जब मैं दो पाइप बनाऊंगा तो मैं दोनों को एक साथ बोलूंगा bronchi, girl, girls, bronchus, bronchi, are you understanding? Singular term is bronchus, plural term is bronchi, okay। So bronchus, यहाँ पे ब्रोंकस मैंने बनाया है, ब्रोंकस के सेल्स पे मैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आई एम ड्राइंग, एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सीलिया। क्या नाम है इनका? सीलिया। सो आप आगे जाके बायो में क्या बोलोगे पता है? आप बोलोगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई हैव ciliated epithelium, ciliated epithelium, epithelium मतलब क्या? अपर लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इन सेल्स को मैं क्या बोलता हूँ, ये देखो, ये देखो, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, चलो कंफ्यूज मत हो जाओ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। कंफ्यूजन कोई बात ही नहीं है, रुक जाओ, आपका टेंशन मैं खत्म कर देता हूँ। देखो पहले सेल्स बना दो, ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट चला गया, मे बी, कोई टेंशन मत लो। ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो सेल दिख रहे हैं ना मुझे न्यूक्लियस के साथ, बिकॉज ये सेल सरफेस पे है। जैसे ये देखो, ये मेरा स्किन, मैं इसको क्या बोलता हूं, ये स्किन है एंड अपर मोस्ट लेयर, तो मैं इसको क्या बोलता हूं? एपिडर्मिस। क्या बोलता हूं? एपिडर्मिस। एपी मतलब क्या प्रिया? व्हाट डू आई मीन बाय एपी? व्हाट डू आई मीन बाय एपी? एपी मीन्स Inside. नहीं नहीं नहीं, एपी, एपी, एपिडर्मिस, अपर, Outer. आउटर में भी ओके, आउटर भी बोल सकते हैं। एंडो मतलब इनसाइड, प्रिया, एंडो। वेयर इज प्रिया? प्रिया इज एंडो हाउस। वेयर इज प्रिया सिटिंग? एपी चेयर। समझ में आया? अबव चेयर, ओके, वेरी गुड, समझा? तो एपी मतलब क्या? अबव, है ना। सो एपिडर्मिस मतलब डर्मिस का, डर्मा का, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट वो जो स्किन की देखभाल करेंगे आपकी। डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन, डर्मा स्किन, एपिडर्मिस अपर लेयर, अपर लेयर ऑफ स्किन। समझ में आया? अपर लेयर ऑफ स्किन। सो कोई भी ऑर्गन अगर एकदम जनरल वर्ड में पूछूं, अगर मैं अक्षय को पूछूं, अक्षय, अक्षय का भी वीडियो आना बाकी है। कितने लोग का वीडियो आना बाकी है यार? सबके सब वीडियो बना ही रहे, बना ही रहे। मेरा जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाए, ठीक है, वहां से निकल चुका है। अक्षय इज बाय द वे मेकिंग वीडियो ऑन केमिस्ट्री, ठीक है, सिंथेसिस, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, वेरी नाइस वीडियो इज कमिंग अप। आदि पूरब इज मेकिंग अ वीडियो ऑन फिजिक्स, okay। So when I have to use a general word for something which is above, जैसे यहाँ पे मुझे अपर लेयर दिख रहा है, ये देखो स्टूडेंट्स, ये जगह ना जो यहाँ पे आपको लेजर दिख रहा है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। यहीं से आपका स्पूटम, जिसको आप बोलते हो कफ निकल रहा है ना, कफ जो निकल रहा है आप बोलते हो, सो वो कफ यहीं से होता हुआ जाता है। ये देखो, यहीं से होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है वो कफ, जिसको हम बोलते हैं स्पूटम एक्चुअली। सो कैन आई ड्रॉ स्पूटम ओवर हियर? ये देखो, दिस इज सपोज स्पूटम,
This is sputum. Now I want my sputum to travel upwards because my sputum should not remain inside me. ये तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ऊपर ऊपर, and then you will throw it outside your body. अब बाहर फेंक दोगे तो ये स्पूटम को बाहर कौन ऐसे ऐसे वाइप करेगा, बाहर कौन वाइप करेगा, ऐसे आया ये बॉटल, इसको मैं ऐसे वाइप कर दूंगा, चला गया, फिर ऐसे आया एक बॉटल, इसको मैं वाइप कर दूंगा, चला गया। सो ये कौन करेंगे, ये काम है सीलिया का। दिस इज जॉब ऑफ सीलिया, एंड सीलिया इज प्रेजेंट ऑन these upper cells, upper layer of cells, blue cells जो दिख रहे हैं मुझे सर, आपने जो blue cells ड्रॉ किया है, इन सेल्स के ऊपर सीलिया होंगे। तो इन सेल को मैं क्या बोलता हूं, आई कॉल दिस सेल्स बिकॉज दे आर ऑन द सरफेस, रिमेंबर, बिकॉज दे आर ऑन द सरफेस। तो इनको मैं क्या बोलता हूं, एपिथेलियल सेल्स। क्या बोलते हैं इनको हम, एपिथेलियल सेल्स। शुड आई राइट डाउन द स्पेलिंग ऑल्सो, एपिथेलियल सेल, देखो टॉप पे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, एपिथेलियल सेल्स। कुछ बात समझ में आई? So these blue cells are known as epithelial cells. They are known as बोलो 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 मेरे साथ बोलो, खाली सुनो मत, बोलते भी रहो। epithelial cells। धनश्री समझा, बोलते रहना है, बोली नहीं तो तुझे अच्छा नींद भी आएगा, बोलेगी तो नींद नहीं आएगी, नहीं बोली तो ऐसे सो जाएगी। Word bronchile. हाँ, क्या बोल रहा है आयुष, क्या बोल रहा है? Sir, can you spell the word bronchile? Okay, bronchi. So I have drawn bronchus. मैंने ड्रॉ किया है bronchus. So I will write bronchus over here. Bronchus. ठीक है, bronchus. Bronchus का प्लूरल क्या है? Bronchus का प्लूरल क्या है? I'll say bronchi. Bronchi. समझ में आया? Bronchus का प्लूरल is bronchi. So ध्यान दो स्टूडेंट्स, लेट मी नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया तो हैंड रेज कर देना, ठीक है? स्टेटमेंट समझ में आया, हैंड रेज कर देना, और अगर ज्यादा लोग ने हैंड रेज किया तो आपको नहीं समझा, फिर भी आप हैंड रेज कर देना, वरना मैं क्या सोचूंगा आपके बारे में, सोचो क्या इंप्रेशन जाएगा, समझा? अगर आप देखोगे 12-15 लोगों ने हाथ रेज कर लिया, मुझे भी समझ में आया बट मुझे हाथ ऊपर करना ही पड़ेगा, अब 12-15 लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया, मुझे भी रेजना है, वो मत करना, ठीक है? नहीं समझा तो नहीं समझा, बोल देना नहीं समझा मुझे। Okay, I'll start now. Listen to my statement very nicely, students. Bronchi contain epithelial cells, a layer of epithelial cells. Layer of epithelial cells. Is this understood? Bronchi contain layer of epithelial cells. Very good. This entire layer, मैं ऐसे बोल सकता हूं, layer of epithelial cells, और एल्स लेयर का एक नाम भी दे सकता हूं। क्या नाम है पता है? एपिथीलियम। क्या नाम है? एपिथीलियम। सो एपिथीलियम इज अ कलेक्टिव टर्म। व्हेन आई से एपिथीलियम, मैंने सबको एक साथ नाम दे दिया, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, ऐसे एक एक करके बोलूं या एक साथ बोल दूं एपिथीलियम, चलेगा, दोनों चलेगा, समझा? सो एक एक सेल का नाम है एपिथेलियल सेल। ये देखो, लेजर चेक करो, लेजर, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, यहाँ पे एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, ऑरेल सेल से, ऑरेल साइल से, ये पूरा जो लेयर है उसको मैं क्या नाम दे दूंगा? आई विल से एपियम। वेरी गुड, epithelium. Understood? Is this part clear, students? Is this part clear? अब मैं आ रहा हूं मेरे काम का जो टर्म है उस पर, अब मैं आ रहा हूं। देखो ये पूरा किस्सा कहानी बताने के बाद, now I'll come to this term. Can I say this is ciliated epithelium? Can I say this is ciliated epithelium? Ciliated epithelium, ciliated epithelium, जल्दी बता दो। अब वर्ड समझ में आया? When I say Yes, sir. Yes, it sir. is ciliated Yes, sir. epithelium. Ciliated epithelium. प्रियंका, are you understanding? क्लियर है? Yes, sir. शाबाश, वेरी गुड। चलो, ciliated epithelium, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? आयशा समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। अद्रिता, सब समझ में आ गया? अरे द्रस्सिका कहाँ पे? इसी देर इन दिस सेशन, द्रस्सिका
Jessica is there or not? No, no, no. क्या हो गया इसको? ये कहाँ पे गायब है? सर ciliated epithelial epithelium. एपिथीलियम, सीलिएटेड, तू ऐसे भी बोल सकता है सीलिएटेड एपिथेलियल सेल, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल, या तू एक साथ बोल रहा तो सीलिएटेड एपिथेलियम, दोनों टर्म यूज कर सकता है। क्लियर? चलो आगे चले स्टूडेंट्स, शुड बी मूव अहेड, शुड बी मूव अहेड। सो कोई आपको बोलेगा Yes, आपके बॉडी में सीलिया है, क्या आप बोलोगे हाँ है? कहाँ है सीलिया? ब्रोंकाई में है। कहाँ है सीलिया? ब्रोंकाई में है। ठीक है, नेक्स्ट, और भी कहीं सीलिया है क्या? बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल इज fallopian tube, fallopian tube, very good Sakshi, I'm coming to that, I'm coming to that. fallopian tube, fallopian tube कहाँ है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, we have fallopian tube. What is the role of cilia over there? cilia का क्या रोल है? जो ओवम रिलीज होता है उस ओवम को आगे धक्का मार देना, ट्रांसपोर्ट कर देना, दैट इज द जॉब ऑफ cilia over there. ओके, चलो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इज दिस अंडरस्टूड? सो नाउ अपन कहां जाएंगे? सीलिया तो क्या होता है वो आपने समझ लिया, फ्लैजेला भी मैंने समझा दिया आपको, स्पर्म इज द बेस्ट एग्जांपल, फ्लैजेला। ठीक है, नाउ लेट अस गो डीपर, और डीप में चलते हैं एंड लेट अस चेक कि अंदर से सीलिया फ्लैजेला कैसे दिखते हैं, अंदर से कैसे दिखते हैं। जैसे बाहर से आपको एक गाड़ी, मस्त कार दिखती है बाहर से, वाओ ब्लैक कलर, लंबी सी गाड़ी है, 4 व्हील्स एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। What if I open the door and if I go inside the car? What all things can I see over there? एक व्हील भी है, अरे गियर भी है, अरे गियर नहीं है, अरे ऑटोमेटिक है, क्या है क्या नहीं है, वो अभी अपने को देखना है। ठीक है, so let us go inside cilia. Yes. Sir, does every cell have cilia and flagella? नहीं 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 नहीं, every cell doesn't have cilia and flagella. No, it is there only wherein function is required. cilia का function जहाँ required है वहीं रहेगा। So, अभी क्या both are not present in a single cell, na? नहीं नहीं नहीं, Either cilia or flagella. Correct, correct, correct. Now one more thing, Rebecca. Now we have introduced these two terms to you now. So now what will happen, as and when we take up one system, suppose when I'll teach you respiratory system, then I'll come to this point कि अच्छा by the way यहाँ पे cilia है, so you now imagine कि अच्छा cilia यहाँ पे, okay done. Next, when I'll teach you reproduction, at that time I'll teach you कि देखो यहाँ पे cilia है, ये देखो यहाँ पे sperm में flagella है, समझ में आया? वैसे so now you've been introduced to this term, what is cilia, what is flagella, where they are present, you will understand this when I'll go system wise. एक एक सिस्टम पकड़ेंगे, एक एक चैप्टर पकड़ेंगे, तो वहां पे मैं याद दिलाता रहूंगा कि देखिए यहाँ पे cilia आ गया, यहाँ पे flagella आ गया, यहाँ पे cilia, यहाँ पे flagella. So every time when I say cilia, then Rebecca should understand कि cilia, okay, cilia is there to move something, cilia is there to move something which surrounds me, मेरे आजू कोई है तो उसको हटाने के लिए, ये लैपटॉप हटाने के लिए, ये टेबल हटाने के लिए, ये ऐसे इस तरह से। सो ओवम को यहां से यहां ले जाने के सीलिया, सीलिया ऐसा, ये मूवमेंट सीलिया देगा। मैं खुद मूव होना चाहूं तो फ्लैजेला मुझे मूव करे, दैट्स इट, वेरी सिंपल। नाउ वी आर गोइंग into cilia flagella. Yes, Palak. Sir, so there is no cell which has flagella and cilia both? फ्लैजेला इसलिए ऐसा नहीं है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में आई मे सी बोथ इन द सेम सेल, बट ह्यूमन बीइंग्स में वी विल हैव टू वेट। आई डोंट थिंक सो कि ह्यूमन बीइंग्स में सिलिया फ्लैजेला दोनों में प्रेजेंट रहेगा कैसे सेल्स में। थैंक यू। ओके ओके, अच्छा अभी साक्षी ने मुझे मैसेज में क्या क्या लिखा है, कॉलमनार एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, ओके। सो साक्षी ऑल, हाँ शाबाश 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 रमीज, क्या बात है। बट वी विल सी दिस व्हेन वी कम टू द लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है रमीज। प्रोटोजोआ, ये सारे एग्जांपल्स मैं अभी नहीं कोट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी एग्जांपल्स में नहीं ले, वो सारे अपन देंगे जब अपन और लोअर वाले चैप्टर्स में जाएंगे। चैप्टर हैं उसके ऊपर, स्पेसिफिकली वी हैव चैप्टर्स ऑन लोअर ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी, देन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब चैप्टर्स में अपन ये सारी चीजें देखना, सिलिया फ्लैजेला देखेंगे, डोंट वरी, इन डिटेल, ठीक है। हाँ साक्षी, यू हैव सेंट मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग ओविडक्ट, करेक्ट ज्योतिका, ओविडक्ट में है, दैट इज नथिंग बट फैलोपियन ट्यूब। साक्षी, स्क्वामस एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम,
नो नो, नॉट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर, प्लाज्मा उनके बाहर है ना, तो बाहर ही चीजों को फेंक देंगे। मतलब जैसे अपने दरवाजे के बाहर एक झाड़ू अपने रख दिया, वो झाड़ू ऐसे मूव कर रहा है, दरवाजे घर के बाहर कुछ चीज आई तो उसको और बाहर और आगे फेंक दे, वैसा कुछ। Sakshi, columnar epithelium, squamous epithelium, these are types of epithelial cells. These are types of epithelial cells. We are not going to touch on those types right now. You will be studying about these types in the structural organization of animals. उस चैप्टर में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, ठीक है? ठीक है साक्षी? Squamous epithelium, columnar, हाँ, very good. क्यूबॉइडल सुना है? क्यूबॉइडल, ये सारे टाइप्स हैं एपिथेलियम। सो स्टडी दोस टाइप्स इन दिस स्ट्रक्चरल चैप्टर। अभी नहीं देखेंगे, यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है? चलो, शुड आई मूव अहेड स्टूडेंट्स? ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था समझाने के लिए। नाउ लेट्स गो इनटू दिस सीलिया का स्ट्रक्चर। कैसा दिखता है सीलिया फ्लैजेला अंदर से? मतलब आपको क्या देखना है कि सपोज ये देखो, मैं इस मोबाइल का एग्जांपल लेता हूँ। मोबाइल देखो ऐसे, सपोज ये सीलिया है, ठीक है? तो मैं अभी क्या करने वाला हूं, इसको मैं ऐसे यहां से कट करने वाला हूं, ऐसे ऐसे कट करने वाला हूं, इस प्लेन में कट करके ऊपर से देखूंगा कि इसमें क्या क्या दिखाई। समझ में आई बात? ट्रांसफर्स। जैसे कि सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट्स, इमेजिन करो कि यू हैव अ कुकुम्बर इन योर हैंड। कुकुम्बर, ककड़ी ले लिया आपने हाथ में, ककड़ी ले लो, हाथ में ककड़ी ले लिया मैंने, ऐसे पकड़ा है उसको, ऐसे इस तरह से, है ना? सो ककड़ी को अगर आपने नाइफ ले लिया और ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, तो ऊपर का पार्ट तो गिर जाएगा। जो पार्ट हमने पकड़ा उसको मैं अब ऊपर से देखूंगा। जब मैं उसको ऊपर से देख रहा हूं तो क्या क्या नजर आएगा? क्या क्या नजर आएगा? कैन आई इमेजिन अ सर्कल नाउ? कैन आई इमेजिन अ सर्कल? एक सर्कल दिखेगा सर, एक सर्कल दिखेगा, है ना? कैन आई इमेजिन फ्यू पार्टीशंस ऑल्सो? ऐसे पार्टीशंस, कैन आई इमेजिन से पार्टीशन टाइप, and then seeds, can I imagine seeds? ऐसे seeds रहेंगे, ये मुझे ऊपर से नजर आ रहा है। करेक्ट है स्टूडेंट्स? ऊपर से नजर आ रहा है ऐसा। सो वैसा ही कुछ आई एम गोइंग टू स्टडी सीलिया ऑल्सो। इमेजिन वी हैव सीलिया इन आवर हैंड, सीलिया, और सीलिया को मैंने कट कर दिया, तो अब इतना ही पार्ट मुझे नजर आएगा, इतना मुझे ऊपर से देखना है, ठीक है? आई हैव टू सी दिस पार्ट फ्रॉम अबव। तो ऊपर से देखा तो क्या नजर आएगा? अंदर का पूरा स्ट्रक्चर। सो दैट स्ट्रक्चर इज ओवर हियर स्टूडेंट्स। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको बना के दिया है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। दिस इज हाउ दे विल लुक फ्रॉम इनसाइड। समझ में आया ना आपको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सा व्यू देख रहे हो स्टूडेंट्स। दिस वेरी दोनों का सेम है? हाँ, दोनों का सेम है। यस यस यस, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अंदर से दोनों का सेम, ठीक है? सो क्या क्या दिख रहा है मुझे? आई विल आस्क यू फ्यू थिंग्स, यू हैव टू आंसर मी। ओके स्टूडेंट्स, you have to look into the diagram and try to answer me, ठीक है? बुशरा रेडी, आदि पूर्व रेडी, सबने कैमरा ऑफ कर दिया? yes, कैमरा स्टूडेंट्स प्लीज कैमरा ऑफ कर दो, ठीक है? कैमरा ऑफ क्यों करना है? क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आपको ऐसे शर्मीले टाइप के हो आप लोग, तो कैमरा ऑफ रखना प्लीज, आपको किसी की नजर ना लग जाए, तो क्या, ठीक है? Okay, everyone has to keep your camera on. अभी मैंने केमिस्ट्री में भी यही बोला, केमिस्ट्री लेक्चर भी मेरा चालू था, तो उस बैच को भी मैंने यही बोला कि लड़कियां जो है वो कैमरा ऑन करके बैठी हैं और लड़के शर्मा रहे। लड़के कैमरा ऑफ करके बैठते हैं। किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? किसने देख लिया तो क्या होगा? अरे वाह, इतना हैंडसम लड़का हमारे बैच में क्या कर रहा है, क्या नाम है इसका? नजर ना लग जाए तुझे, ये सब नहीं करना है। सबको कैमरा ऑन करना है। चलो, स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन। हाँ, शाबाश मनु, कैमरा ऑन ही रखना, ठीक है? रमेश, तुझे भी कैमरा ऑन रखना है। सब कैमरा ऑन करके लेक्चर अटेंड करो ताकि मैं भी आपको देख पाऊं, मैं आपको क्वेश्चंस पूछ पाऊं। और अगर आप कंफ्यूज है सो आई कैन मेक आउट फ्रॉम योर एक्सप्रेशन कि यस यू आर कंफ्यूज्ड, आई विल बी एबल टू हेल्प यू स्टूडेंट्स। जैसे ही हम लोग कैमरा ऑन कर, सब कैमरा ऑन कर लेंगे। जैसे ही मैं एक्सप्लेनेशन में गया, कैमरा ऑफ।
कैमरा ऑफ कर लो और ऐसे लेट जाओ, है ना, फिर खाली सुनते रहो, आवाज सुनते, फिर जैसे अपनी आवाज आई उठ के कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। ये अलग टास्क चालू है। एक तो टास्क चालू है कि अंडरस्टैंड करना बायो क्या होता है, वो एक अलग टास्क चालू है कि एपिथेलियल, ब्रोंकाई, फ्लैजेला, ट्रांसवर्स, मीडियल, अलग अलग टर्म्स चालू है अलग। और एक ये अलग टास्क चालू है, कैमरा स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये अलग चालू है, ये अलग से गेम चालू है। चलो, सो ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स यू कैन सी few complete circles। चेक करो, complete circles अपने को नजर आ रहे हैं, complete circles नजर आ रहे हैं आपको, complete circles नजर आ रहे हैं क्या? कितने complete circles नजर आ रहे हैं, चेक करके मुझे बताओ। complete सर 11। Are you sure about it? 11 है स्टूडेंट्स, चेक करो। 11 है, वेरी गुड। पेरीफेरी में कितने हैं? पेरीफेरी में कितने कंप्लीट सर्कल्स हैं? पेरीफेरी में 9 इज राइट आंसर। सेंटर में कितने कंप्लीट है? ये देखो, कंप्लीट किसको मैं बोलता हूँ? मैं कंप्लीट इसको बोलता हूँ। चेक करो, लेजर चेक करो, दिस इज कंप्लीट सर्कल, दिस इज कंप्लीट सर्कल, आई कॉल दिस एज कंप्लीट। इसको भी कंप्लीट बोल दूं? Yes. 1 Yes, sir. 2 3 4 5 6 7 8 9 complete circles, 10 11. So peripheral, central, peripheral, central, करेक्ट है? करेक्ट है स्टूडेंट्स? सर सेंटर में तो 2 हुए ना, मतलब हाँ, 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट, 9 पेरिफेरल 2 सेंट्रल। ओके स्टूडेंट्स, 9+2 अरेंजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेक्निकल टर्म है, ये मैं अपने मन से नहीं बना के बोल रहा हूँ, 9+2 टेक्स्ट बुक में डाला है आपके, 9+2 अरेंजमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, कंप्लीट इनकम्प्लीट, कंप्लीट इनकम्प्लीट, कंप्लीट इनकम्प्लीट। ये मुझे लॉजिकली दिख रहा है, कंप्लीट इनकम्प्लीट, कंप्लीट इनकम्प्लीट। सो कैन आई से डबलेट? एक साथ बोलूं, डबलेट, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट। सब सुना है ये? कभी टर्म सुना है? सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, है ना? ट्रिपलेट सुना है? ट्रिपलेट सुना है, वेरी गुड। ट्रिपलेट सुना है, फराह खान हैज ट्रिपलेट्स, गुड, वो सुना है हमने। ओके, डबलेट भी सुन लिया मैंने अभी। डबलेट मतलब 2, अ पेयर, पेयर, जोड़ियां, ठीक है? सो डबलेट आई कैन सी, वेरी गुड। ओके, नाउ इनको मैं बोलता हूं, जो सर्कल्स मुझे दिख रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं पता है? माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं उनको हम? व्हाट डू वी कॉल देम स्टूडेंट्स? माइक्रोट्यूब्यूल। लाउडली बोलो, माइक्रोट्यूब्यूल। बोल के देखो, बोलने आ रहा है आपको? यस मुस्कान, माइक्रोट्यूब्यूल, शाबाश। यस सृष्टि पंचाल, आई कैन सी यू इवन दो योर कैमरा इज ऑफ। बोलो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, वेरी गुड अक्षय, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, so now do you understand why do I call this as central microtubule? Do you understand why do I call it as central microtubule? Yes, sir. Central microtubule, okay. Next मुझे सोच के बताना, No, सोच के sir. बताना। सेंट्रली प्लेस्ड है ना, सेंट्रली प्लेस्ड है, इसलिए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। समझ में आया पूजा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, शीथ मतलब क्या होता है? शीथ मीन्स व्हाट? कवर और कवरिंग। शीथ मतलब क्या? कवरिंग और कवर। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हेन आई से सेंट्रल शीथ, central sheath, can I imagine it is around central microtubule? central sheath, ये देखो central sheath, ये टर्म दिख रहा है? ये रहा central sheath। एक्चुअली ऐसा पूरा सर्कुलर होता है, ठीक है? डायग्राम में वैसा है, इसलिए उसने वैसा बनाया, सर्कुलर होता है। दिस इज कवरिंग स्टूडेंट्स। शीथ मतलब क्या? कवर। ओके, शीथ, शीथ means covering. So when I say central sheath,
So this covering is present in the center, around the central microtubules. Am I clear with this? Yes, students. मनु समझ में आ रहा है क्या ये? Okay, शाबाश शाबाश. आदि तुझे कंफ्यूज हो रहा है अच्छे से? नहीं सर. नहीं हो रहा है. ठीक है. I'll try my best. I'll try my best to Sir? confuse you. Let me see. हाँ, बोलो बोलो बोलो. So, पूजा बोल बोल. so microtubule वाला पार्ट वापस एक्सप्लेन करो ना. माइक्रोट्यूब्यूल मतलब खाली स्ट्रक्चर का नाम दिया मैंने माइक्रोट्यूब्यूल. ये देख, ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल हैं. मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे सर्कल दिख रहा है. 1 2 3 4 9 मैंने काउंट किया. ये 9 सर्कल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स. समझ में आया? ये जो सर्कल दिख रहे हैं ना पूजा, इन सर्कल्स का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल. दैट्स इट. ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है. समझा? Yes, sir. तो Thank अभी you, मुझे sir. बता, ये माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में है कि नहीं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. और ये वाले पेरिफेरल में है. ये देख, ये वाले पेरिफेरल में है. दीज आर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स. समझ में आई बात? Yes, sir. ओके. देन देयर इज अ लेयर व्हिच इज अराउंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये लेयर जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऐसा बोल सकते हैं अपन. कवर बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव मत बोल, कवर. देयर इज अ कवर अराउंड दीज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो दिस कवर इज नोन एज सेंट्रल शीथ. अंडरस्टूड? दिस कवरिंग इज नोन एज सेंट्रल शीथ. क्लियर है बात स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? Yes, Is this sir. clear? Now remember students, ये देखो, try to imagine properly कि if I'm having a huge, वो पता है अपन ऐसे बुक को, आप स्कूल जब चालू होता है तो अपन बुक को कवर करने के लिए बंडल लाते हैं, कवर का ब्राउन कलर का बंडल लाते हैं. उस बंडल को अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो कैसे दिखेगा? ऊपर तो एक सर्कल दिख रहा है, पूरे बंडल का सर्कल दिखेगा खाली, पर एक्चुअली इतना लंबा सा है नीचे. हाँ, ये देख, अक्षय के पास कवर भी है. गुड. That, see, very good अक्षय. So मैं ऊपर से देख रहा हूं ना तो मुझे सर्कल खाली दिख रहा है, बट अगर वो सर्कल मैं इमेजिन करूं तो लंबा सा रॉड जैसा होगा अंदर, है ना? कैन यू रिकलेक्ट प्रॉपर्ली स्टूडेंट? समझ, कैन यू असेस प्रॉपर्ली? कुछ बात समझ में आ रही है? ये देखो, अगर मैं साइड से देखूं ना तो ऐसा दिख रहा है. ये देखो, 1 2 देन S 1 देन 2 देन 3 देन 4. ये दिख रहे हैं कुछ ऐसे लाइन से बड़े बड़े रेड कलर के रॉड्स हैं जो बाहर है, और सेंट्रल में 2 रॉड दिख रहे हैं मुझे. 2 रॉड सेंट्रल में. समझा? ये इमेजिन करो एक बार, ये क्या है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ. ये देखो, यहां से मैंने ऐसे कट कर दिया, या मैं ऊपर से ऐसे यहाँ से कट कर देता हूँ. ये प्लेन में कट करके अब ऊपर से देखूंगा. जब मैं ऊपर से देखूंगा तो नाउ आई कैन सी दिस स्ट्रक्चर विच इज ऑन योर स्क्रीन. ये मुझे दिख रहा है. देखो, दिख रहा है. सेंट्रली आई कैन सी 2 सर्कल्स ब्लैक कलर के. देखो स्टूडेंट, दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक जो रॉड थे, वो जो रॉड का टॉप मैं देख रहा हूँ, टॉप से देख रहा हूँ, तो रॉड का खाली हेड मुझे दिख रहा है. सर्कल एक्चुअल में पूरा रॉड है, उसका खाली मुझे टॉप पार्ट दिख रहा है. समझा? वैसे मुझे ये जो रेड रॉड है, ये वाला स्टूडेंट्स, ये मुझे कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है. देखो, ऊपर से. साइड से देखूंगा तो लंबा दिखेगा, ऊपर से देख रहा हूं तो खाली सर्कल दिखेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये देखो, इस बॉटल को साइड से देखूंगा तो ऐसे लंबा सा बॉटल दिख रहा है, ऊपर से देखूंगा तो खाली मुझे ढक्कन दिख रहा है, सर्कल. तो ये डायग्राम में आप ऊपर से देख रहे हो. ठीक है, ये जो डायग्राम आपके स्क्रीन पे, ये आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से, तो आपको ये सर्कल दिख रहे हैं. साइड से देखूंगा तो लंबा सा कुछ तो है जिसको आपने कट करके ऊपर से देखना है, अंदर से. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Therefore, cilia is ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए उसके अंदर जो कंपोनेंट इसको ट्यूब्यूल बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, बिकॉज ऑफ इट्स शेप, लेंथ, लेंदी है, सिलिंड्रिकल है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? समझ में आई बात? एक और एग्जांपल क्या है? अच्छा, किसी के पास अभी फिलहाल 4-5 पेन है क्या सामने? 4-5 पेन, पेंसिल इकट्ठे करके सब ले लो अपने हाथ में.
चार पांच पेन हाथ में लो। हाँ वेरी गुड आदि, वेरी गुड। अभी अपने, हाँ शाबाश, मुस्कान के पास बहुत ज्यादा है। ओके, इफ पॉसिबल तो सेंटर में 2 पेन रखो, सेंटर में 2 पेन पकड़ो और बाकी पेन ऐसे इकट्ठे कर लो। हाँ स्केच पेन, वेरी गुड। सेंटर में 2 रख आदि, और उसके आजू बाजू बाकी 9 उसके आजू बाजू नीचे, 9 उसके आजू बाजू नीचे। वेरी गुड प्रिया। पकड़ो ऐसे पेन, ऐसे पकड़ ही लो पूरा, ऐसे पेन सर्कल में पकड़ लो पूरा, सारे पेन पकड़ के। ठीक है, सारे पेन पकड़ लिया पेन ने, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। सब पेन पकड़ लिया हमने। इमेजिन करो कि 9 सर्कल में है, बाहर है, और 2 सेंटर में, ऐसे इमेजिन करते हैं। ठीक है, आपके पास उतना होगा नहीं, बट इमेजिन करते हैं। चलो, सो नाउ स्टूडेंट्स, इस पूरी चीज को, ये जो आपने कलेक्ट किया ना, हाथ पकड़ लो, अच्छे से पकड़ लो। अभी और पेन मत लो, पकड़ लो, इसको इकट्ठे कर लो। चलो रेडी। नाउ लेट अस ट्राई टू सी दिस फ्रॉम अबव। ऊपर से देखो, चलो एकदम टॉप व्यू लो, ऊपर से व्यू लो। जैसे मेरे पास बॉटल है, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से देखो। आपको लेंथ दिखाई दे रहा है क्या पेन का, या खाली टॉप दिखाई दे रहा है पेन का? खाली टॉप दिखाई दे, ओनली टॉप। शाबाश। सो ये जो आप ऊपर से व्यू ले रहे हो, दिस इज ये वाला व्यू जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कुछ बात समझ में आई? ये है पेन नंबर 1, पेन नंबर 2, 3, 4। कुछ बात समझ में आई? और सेंटर में 1 और 2 पेन है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड है ना? अब यही चीज साइड से देखो, सामने कर लो। अब लेंथ दिख रहा है मुझे, अब लेंथ दिख रहा है। ये शाबाश, क्या बात है आदि, वापस दिखा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो साइड से अगर अपन आदि खाली ऐसे सामने, स्क्रीन के सामने से कुछ चीज को, हाँ बस होल्ड कर। एग्जैक्टली, ये मैं साइड से देख रहा हूं तो मुझे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आते हैं। ये जो आदि ने पूरा पकड़ा है, पूरे स्ट्रक्चर को, अंदर जितना भी काउंटिंग नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे को एक साथ मैं बोलता हूं सीलिया। बात खत्म। पूरे को एक साथ मैं बोलता हूं सीलिया। अब एक एक चीज पे पॉइंट कर आदि, एक एक चीज पे। ग्रीन वाले पे हाथ रख, ग्रीन वाले पे, वेरी गुड। दैट इज 1 माइक्रोट्यूब्यूल। बाजू में येलो, 1 माइक्रोट्यूब्यूल। बाजू में ब्लू, अनदर माइक्रोट्यूब्यूल। बाजू में रेड, अनदर माइक्रोट्यूब्यूल। समझ में आई बात? सबको समझ में आ गई बात? सो ये जो स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये जो स्क्रीन पे ये स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलोगे? ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? सीलिया। सीलिया। क्या बात है, वेरी गुड, सीलिया। अंडरस्टूड? सीख लिया, सीलिया, वेरी गुड। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग एक्चुअली, बट देन इफ यू हैव, अभी आदि ने लकीली उसके पास वो एग्जांपल निकल गया, उसने दिखा दिया, तो हमको समझ में आ गई। नाउ कैन आई से सीलिया एंड फ्लैजेला? फ्लैजेला भी ऐसे दिखता है। सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना? समझा देवांशी? देवांशी समझ रहा है? ओके, देवांशी समझ रहा है ना? आवाज नहीं आ रही थी? यस सर। हाँ गुड गुड गुड। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? टेंशन में दिख रही है? नहीं है, ओके गुड। कंफ्यूजन नहीं है, वही टेंशन है मुझे। कंफ्यूजन क्यों नहीं हो रहा है मुझे? ओके चल, क्लियर है यहाँ तक? सो स्टूडेंट्स, वो जो पेन अपन ने पकड़ रखे थे, वो पेन माइक्रोट्यूब्यूल है। सो अभी नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि जो माइक्रोट्यूब्यूल आपको टॉप से सर्कल दिख रहा है, वो सर्कल नहीं है, वो लेंदी चीज है। बट आप ऊपर से देख रहे हो, इसको आपको सर्कल दिख रहा है, बस, और कोई बात नहीं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया सबको? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो ऐसा कुछ सीलिया दिखता है। जब मैं सीलिया को कट करके अंदर से दिखता हूँ कैसा है, तो मुझे अंदर माइक्रोट्यूब्यूल नजर आते हैं, जो कि लेंदी स्ट्रक्चर्स हैं। बट मेरा व्यू इज टॉप व्यू राइट नाउ, देयरफॉर आई कैन सी दिस पैटर्न। आप नेट पे जाके देखोगे ना सीलिया फ्लैजेला स्ट्रक्चर, तो आपको ये जो आदि जैसे दिखा रहा था, वैसे भी एक इमेज दिखेगा। ओके, ऐसे लेंदी। तो 2 इमेज आपको समझना है। और आपको किसी आपके फ्रेंड ने पूछा कि ये क्या है, तो आपको समझाने भी ऐसे आना चाहिए कि चल पेन ले ले, तो साइड से देखेगा तो दिस इज सीलिया। और सीलिया में जितनी भी पेन, ये सारे पेन का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स है। बाहर की तरफ 9 कंप्लीट एंड 9 हाफ, अंदर की तरफ 2 कंप्लीट। 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट। ओके स्टूडेंट्स? Okay students, is this Sir, clear? even the half circles are known as microtubules only?
यस 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 यस, दैट इज द काइंड ऑफ अरेंजमेंट, बस और कुछ नहीं। उनका भी नाम माइक्रोट्यूब्यूल ही है, माइक्रोट्यूब्यूल। ओके सर, थैंक यू। यस, चलो बाकी लोग समझ में आ गई सबको बात? अश्विनी, व्हाट अबाउट यू? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीथिंग अश्विनी? एग्जांपल समझ में आया? धनश्री, व्हाट अबाउट यू? निधि मेहता? यस सर। गुड, वेरी गुड। अद्रिता? Very good. Adrita, how many microtubules you are having right now with you? How many microtubules are there on your desk? One. Only one. Okay. Okay, very good. ठीक है, चलो चलो आगे बढ़े। Students, should we move ahead? है ना? So now सारी फैक्चुअल बातें जान लेते हैं। चलो, so बाकी ये चीज, अच्छा ये भी चीज चेक कर लेते हैं। चलो अभी आदि एक काम कर, वो वापस दिखा मुझे पूरा सीलिया। हाँ, अभी एक पेपर है तेरे आसपास, पेपर कोई है? सिंगल पेपर, कवर। अक्षय तेरे बाजू में ये स्क्रीन पे, अक्षय उसको कवर दे दे। हाँ पेपर ले ले, शाबाश। एक, हाँ वेरी गुड। एक पेपर को उसके अराउंड रख दे, कवर कर दे उसको। वेरी गुड। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? दिस पेपर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चेक करो स्क्रीन पे, चेक करो स्क्रीन पे, चेक करो। कैन यू सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कैन यू सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? है ना? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड नाउ द कनेक्शंस बाकी आपको समझ में आएंगे। रेडियल स्पोक्स, है ना, एंड देन कनेक्टिंग पॉइंट बीच में जो है वो सारी चीजें। अभी ये डायग्राम एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया है, बट स्टूडेंट ने बना रखा है डिटेल में ताकि आपको एडवांटेज हो जाए। ठीक है, बोर्ड्स की बुक में स्टूडेंट्स, हाँ वेरी नाइस, बोर्ड्स के बुक में इट इज गिवन इन मोर डिटेल। बाय द वे जो मैं सिखा, जो मैंने डायग्राम लिया है, ये एचएससी बोर्ड के बुक में प्रॉपरली ऐसे ही दिया है। दे हैव गिवन द साइड व्यू आल्सो, बट जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट इमेज। इतना, दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू। ओके, बोर्ड्स के स्टूडेंट्स जो हैं, यू शुड गो इनटू बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक एंड चेक दैट इमेज। ओके स्टूडेंट्स, बाकी ये जो कनेक्शंस के नाम है, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं। देखो, दीज आर ऑल प्रोटीन्स इन नेचर। जो आपने यहाँ पे लिखा है, और क्या क्या लेबलिंग यहाँ पे, वेट आई लेट यू, ठीक है, और क्या क्या लेबलिंग यहाँ पे किया है। शाबाश, ये बहुत इंटरेस्टिंग लेबलिंग, चेक करो। इफ आई कॉल देम डबलेट, ठीक है, डबलेट, दो खाली स्केच पेन उठा के मुझे दिखाओ आपके पास जो दो माइक्रोट्यूब्यूल, आपके कोई भी दो माइक्रोट्यूब्यूल उठा लो। लेफ्ट हैंड में दो माइक्रोट्यूब्यूल, राइट हैंड में दो माइक्रोट्यूब्यूल, जल्दी जल्दी। लेफ्ट, Adrita has only two, so she'll be showing only one and one in each hand. Okay, two, very good, शाबाश। So आपने पता है क्या पिक किया है? आपने लेफ्ट हैंड में आपके ये है दो, एंड राइट हैंड में आपके ये दो है। करेक्ट है स्टूडेंट्स? कैन यू कोरिलेट प्रॉपर्ली? नहीं, अद्रिता नहीं समझा? दो पेन, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? Yes, Adrita. Getting it properly? Yes, sir. Okay, good. ठीक है. So I have देख 1 and 2 pen in one hand, and you have 1 and 2 pen in the other hand. Okay, students? ऐसे दिखाओ, सामने दिखाओ। हाँ, अब इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा, ऐसे आपका उंगली एक कनेक्ट कर दो दूसरे वाले पेन से। हाँ शाबाश। सो दैट दीज फिंगर्स व्हिच आर कनेक्टिंग द टू डबलेट्स, एक हैंड में जो दो है ना, दो पेन, उसको डबलेट बोलते हैं। सो यू हैव वन डबलेट इन राइट हैंड, यू हैव वन डबलेट इन लेफ्ट हैंड। अंडरस्टूड? वन डबलेट इन राइट हैंड, वन डबलेट इन लेफ्ट हैंड। आर यू क्लियर विद दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्लियर है सबको? डबलेट 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 डबलेट। अब इन दोनों डबलेट को जो कनेक्ट करेगा, कौन कनेक्ट करेगा? डायग्राम में दिखाऊं मैं आपको। ये देखो, ब्लैक कलर में चेक करो, ये जो है ये रॉड है, देखो यहाँ भी है, ये देखो यहाँ भी है। इन दोनों जो कनेक्ट कर रहा है, चेक करो, जो डबलेट्स को कनेक्ट कर रहा है, समथिंग विच इज कनेक्टिंग द टू डबलेट्स, प्रियंका इज लुकिंग बीनीथ द डबलेट, शी इज लुकिंग लाइक दिस। ओके, थिंग विच इज कनेक्टिंग द टू डबलेट्स,
थिंग विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू डबलेट्स। हाँ क्या बात, आदि एकदम इम्प्रोवाइज कर रहा है, देखो एकदम वो सीलिया में इन्वॉल्व हो गया है, आज सीलिया ही बना डालेगा स्केच पेन से ही। So something which is present between, focus on the word between, something which is present between the two doublets is known as between, shabash, it is known as interdoublet, am I understood students? समझ में आ गया, सिंपल है ना। ये बिटवीन के लिए अपन ने इंटर यूज किया ना बहुत बार। वापस सेम एग्जांपल देता हूं, बिटवीन टू स्कूल कंपटीशन होता है अपन क्या बोलते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन। दो जोन के बीच में बातचीत हो रही है, इंटरव्यू या इंटरैक्शन। अपन क्या बोलते हैं, इंटरैक्शन चालू है, इंटरैक्शन, आई एम इंटरैक्टिंग विथ यू, something which is happening between you and me, that is interacting. I'm something acting between you and me, acting between you and me is interacting. Okay, so interdoublet bridge है ना। चलो इसको हटा देते, ये तो मुझे समझ में आ गया बात, ये बात बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, ये टर्म तो मुझे समझ में आ गया इजिली, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी समझ में आ गया। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, बाहर वाले स्केच पेन, अंदर वाला स्केच पेन, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दिस एंटायर अरेंजमेंट, ये जो सेट है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो आदि ने हमको दिखाया, जो अपन पूरा ओवरऑल सीलिया बोलते हैं, बट दिस एंटायर अरेंजमेंट इज नोन एज एक्सोनीम। Exoneme. So I can say cilia has exoneme. Exoneme मतलब क्या, पूरा अरेंजमेंट, 9+2, पेरिफेरल, सेंट्रल, इंटरडबलेट, डबलेट। ठीक है, क्लियर है? Is that clear students? Is that clear? Yes sir. Yes, sir. शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आप बोलोगे सर ये जो चीजें बाहर आ रही हैं ये क्या है, ये देखो ये जो छोटे छोटे, ये वाला, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सो दीज आर प्रोटीन स्ट्रक्चर जिनको अपन बोलते हैं डायनिन, वी कॉल देम एज डायनिन, दैट्स इट। समवेयर यू विल गेट द स्पेलिंग आल्सो, डायनिन, ये भी आपको मिल सकता है स्पेलिंग, डायनिन। ओके, बोर्ड्स के बुक में very specifically they have given this structure, they have explained this dynein present, function they have not written, so it doesn't have a significant function, it makes up this structure, that's it is one of the structural component of exoneme and therefore cilia। ठीक है आयशा, समझ में आ रहा है? मनु, what about you? Okay, good, Yes, sir. all right, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। दैट्स इट, ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो आपको सिलिया फ्लैजिला सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर अगर आता है तो आपको सब कुछ, अब आप स्ट्रक्चर एक बार इमेजिन कर लो, आपके पास नोट्स में दे ही दूंगा। नाउ यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, आपको सारा कुछ लाइन समझ में आएगा आराम से। ठीक है Sir, यस रेबेका। sir, is one doublet one microtubule or is No. it two microtubules? Two microtubules. So this sir, is one, see this is one microtubule, this is second microtubule, and this is one doublet. Understood? और कुछ? sir, because you said there are 9 plus 2 na, so 9 are on the peripheral. Understood. So when I'm saying 9 plus 2, I'm just counting the complete ones. So I say 9 plus 2 arrangement. ठीक है? Okay sir, thank you. ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, और कुछ डाउट है? Anybody? I heard somebody speaking. एक मिनट, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो सीलिया फ्लैजिला आपका हो गया, ठीक है। टेक्स्ट बुक आप रीड करोगे, आपको समझ में आएगी बातें, नहीं समझी तो आई एम देयर ऑलवेज। नेक्स्ट आई विल गो टू सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, ये वर्ड कहाँ सुना है मुझे याद आ रहा है, बट कहाँ सुना है मुझे I cannot recollect. Chromosomes. Cell divisions. Cell division.
somewhere you are close to chromosome, you are in the vicinity, आप concept के आसपास हो. If you say chromosome, आप concept के बहुत नजदीक हो. If you say division, cell division, if you say cell division, if you use that term cell division, you are right on the point, proper point पे हो. अब आप I'll take you to the point, don't worry, मैं आपको वहां तक लेकर चलता. Try to imagine cell division के sections, metaphase, anaphase, याद आ रहा है? Separate, separate, separate. तो separate कौन करता है? वो जो थ्रेड की जैसा दिखता था ना अपने को ड्राइंग में, ये देखो हम अपन ऐसे अपन क्रोमोसोम बनाते थे, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, एंड देन वी से ये वाला इधर खींच लिया जाएगा, ये वाला इधर खींच इस पोल पे आ जाएंगे, एंड ये सारे इस पोल पे चले जाएंगे, इस पोल पे. याद आ रहा है? Spindle fibers. Spindle fibers, very good. Spindle fibers, they are formed of microtubules, and we are moving towards centrosome and centriole. So these spindle fibers are also made up of microtubules,